और अच्छा, किसी चीज़ को हासिल करने के हवाले से भी ऐसा ही है। अगर आपको कोई लाइफ में मकसद है, अगर आपकी कोई अचीवमेंट हो, आपने वो गोल हमेशा याद रखना है, रोज़ाना उसको रिवाइज़ करना है, रोज़ाना उसका जिक्र करना है, रोज़ाना अपने माइंड में रखना है। आप यकीन करें आपको वो चीज़ मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, ख़ास तौर पे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने की ही वजह से आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है आई टुक माई मदर टू शेथी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आई टुक माई मदर टू शेथी इन हेलीकॉप्टर एंड रीच्ड इन जस्ट 50 मिनट्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। Finally arrived in Shirdi. That was a quick ride. So it's 8 a.m. in the morning and I've come to pick my mum up for a trip to Shirdi, and Auto Hanger has sent a luxurious car for our transfer. Given the times we are living in, I want to take my mother to her most favorite place, Shirdi, in the most luxurious and a socially distanced way. Blade India is an urban air mobility firm that aims at cutting down travel time, enabling people to ditch the traffic and take to the skies instead. Unlike the airports, we could reach Juhu Aerodrome just 20 minutes before the takeoff time. The quintessential Blade experience takes off with enjoying refreshments and taking a breather before the takeoff. We were given a yellow color slap band, which acts as a boarding pass for check-in along with the safety kit. Well, pretty cool, isn't it? We had to reach the helipad just 20 minutes before the takeoff time. Currently, we are chilling in the private lounge of Blade, waiting for the pilot to be ready, so we are ready to take off. Okay. And pretty soon, it was time to board. Well, after a very tough 2020, my mother really wanted to go to Shirdi, so I am taking her in a private helicopter to her favorite place, Shirdi. Let's go. We put on seat belts, contained our excitement, and took off from the helipad. Unlike the aeroplane, the helicopter takes off instantly without the requirement of speeding up on the runway. And therefore, you may not even realize when you are in the air. It's only the engine sound of the chopper that will remind you that this is not your regular flight. The helicopter flies at a height of 2,500 to 4,000 feet, giving a perfect bird's eye view of the city. The 50 minutes long journey entails flying over soaring buildings and the sprawling slums of Mumbai. Given the peak office hours, I was glad to be not stuck in the city traffic. The sight instantly changed to open fields, lofty mountains, and the gorgeous lakes. If you travel in the early mornings, you may even spot a few flamingos. The sight is gorgeous throughout. What would otherwise take 6 to 8 hours by road, it takes only about 50 minutes to get to Shirdi by Blade India's chopper services. I remember as a child dreading the Kasara Ghat journey as I've always experienced motion sickness. But this time around, dodging all of that, flying over Maharashtra and having my mummy by my side smiling and feeling proud made me feel very happy. I can't believe it, but I'm flying over the majestic mountains of Maharashtra. That's why I say I love my India. Much like the commercial airline, you have a convenient option of booking a seat in the helicopter and not charter the entire helicopter. The chopper too has only 5 people at any given time compared to hundreds in a plane and at the airport. The wait time is a maximum of 15 minutes that limits your exposure to other people. Finally arrived in Shirdi. That was a quick ride.
arriving in Shirdi and before heading to the temple, you can make a quick pit stop at the Blade Lounge. So this is the Blade Lounge in Shirdi where you can come, relax, have some refreshments before you head to get the Sai Baba darshan. The temple is only 8 kilometers away from the helipad, and there'll always be someone from the Blade team to escort you door to door and also help with the VIP access to the site. On our way back to Mumbai, I decided to sit next to the pilot to have him share his experience and of course the view. वही नज़ारे दोबारा। क्या बात है, जबरदस्त है, यादगार सफर। बहुत ही खूबसूरत और वाकई बहुत ज़्यादा दुनिया ने तरक्की कर ली है, तो दुनिया छोटी हो गई है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो भी मतलब चार्जेस ले रहे हैं वो 15,000 प्लस GST ज़्यादा है या फिर ठीक है? मेरे ख्याल में 15,000 का मतलब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 30,000 पर हेड। 30,000 सही है, सही है। मतलब थोड़े कम होते लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हाँ। लेकिन थोड़े कम होते, 20 तक होते मेरे ख्याल में। होते यानी कि 10,000 पर हेड। 10,000 नहीं, इंडियन 10,000 होते यहाँ पे और मेरे ख्याल में 15,000 जो है वो थोड़े ज़्यादा है। 20 नहीं 15 बोला है ना, तो बोल के अब चुप हो गए। अच्छा, खैर बहरहाल एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र था और साईं बाबा के दर्शन किए उन्होंने। और साईं बाबा के दर्शन जो है, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि हम बिना दर्शन किए ही चले गए हैं बाहर ही से, क्योंकि कितना मतलब रश होता था, लाइन इतनी लंबी लाइन होती, इतना वेट करना पड़ता था, बहुत लंबा सफ़र होता था, बहुत टाइम लगता था। तो ये बहुत ईजी हो गया है लेकिन अब ऑर्गेनाइज तरीके से। एक तो ये सर्विस अलग है, दूसरा इसके अलावा जो लाइनें लगी होती थी उसका भी उन्होंने एक सिस्टम किया। और लोग अपनी मर्जी से जो चढ़ाते थे वो चढ़ाते थे, तो उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, सिस्टम कर दिया, सिस्टम में कर दिया कि आपको प्रसाद मिलेगा तो एक लड्डू, वो भी साफ सुथरे तरीके से पैकेट के अंदर।
अच्छा, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है एज ए मुस्लिम कि आप अगर कोई इस तरीके से जो मजहबी जगह होती हैं या आपकी इबादत की जगह होती हैं या मज़ारात होते हैं या मंदिर होते हैं या कुछ इस तरह से जो क्या कहेंगे हम उन्हें टेम्पल्स होते हैं, तो वहाँ पर वही लोग जाते हैं जिनके नसीब में होता है, जिनको वहाँ से बुलावा आता है। exactly. ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं होता, तो अचानक कोई एक शख्स जा रहा होता है तो वो कहता है कि यार मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ तुम भी चलो। अच्छा, तो ऐसा वो है? ऐसा भी होता है, मतलब बाकायदा पता ही नहीं होता एक दिन 2 दिन पहले कि यार वहाँ जाना पड़ जाएगा हमें, और किस कोई दोस्त लेके। ऐसा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक हमारे साइड पे भी एक आंटी हैं, तो उनका मतलब बड़ा दिल था ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी है ना, यहाँ जाने का मज़ार का। वो बहुत कई बार वो इरादा कर ही नहीं हो रहा, कई बार वो इरादा कर ही नहीं हो रहा, 5-6 साल बाद जाने की मतलब उनको सादत नसीब हुई। हालांकि जबकि जब वो कराची करती में थी तब कैंसिल हो जाता था। नहीं, तो जबकि कराची में रहती है, जब भी वो करती थी कुछ ना कुछ मसला होता था, अब्दुल्ला शाह कैंसिल हो गाजी जाता का मज़ार जो है वो कराची में ही है, सी साइड। तो मैं ये बता रही थी कि वो जो आंटी थी वो हमेशा मतलब इरादा करती थी, लेकिन मतलब तो इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई जिनका बुलावा होता है वही जा सकते हैं। और आपको पता है हिंदू बरादरी बहुत बड़ी तादाद में मज़ारात को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, और जितने भी मतलब है कि जो पुराने दौर के लोग थे या इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भी मंदिरों का बहुत एहतराम करते हैं, टेम्पल्स का एहतराम करते हैं और बाकायदा वहाँ पे अपनी मुरादें मांगने जाते हैं। बिल्कुल ऐसा, और वो पूरी भी होती हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुरादें पूरी क्यों होती हैं, कब होती हैं, किसकी होती हैं, ये आप थोड़ा सा बताएं मुझे। जिनके दिल में मतलब यकीन हो, पुख्ता यकीन हो, अकीदत हो। मैंने एक चीज़ नोट की है, आप ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, किसी से भी मांगते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग से, बहुत ज़्यादा नीयत से कि मुझे मिलेगा और जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा कोई सुन रहा है, मैं 100% मैं बिल्कुल हवा में बातें खलाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल यकीन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक बात किसी से कर रहे हैं और आपको यकीन हो कि वो सुन रहे हैं और यकीन करें वाकई वो सुनते हैं और आपका रिजल्ट आता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, देर सवेर, और दूसरी बात वक्त अपने वक्त पे होता है, आपको यकीन हो, अकीदत हो इस बात पे कि वो वाकई आपकी सुनेंगे और पूरी करेंगे। और ये मैं कहता हूँ, मैं बस इतना कहूँ कि आजमाई हुई बात है, मेरी बिल्कुल आजमाई हुई बात है कि वाकई आपकी ईश्वर सुनते हैं। नहीं, अब मैं सिर्फ आपकी इंडिविजुअली बात नहीं करी, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने भी पूछा और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हमारी तो दुआएं बड़ी जल्दी पूरी हो जाती हैं। उनसे पूछा गया कि क्यों, ऐसी क्या बात है, बहुत सारे लोगों की तो अल्लाह पाक नहीं सुनते या ईश्वर नहीं सुनते, तो उन्होंने यही कहा कि बस अकीदत से मांगे और इस बात का यकीन रखें, पुख्ता यकीन होना चाहिए कि आपकी ये दुआ पूरी होगी। एक छोटी सी, पता नहीं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की नहीं की, एक छोटी सी कहानी थी कि एक गाँव में बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, की थी आप, कि पहले भी शायद इस बात का जिक्र किया था कि गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो सारे गांव वाले मिलके बारिश की दुआ करने जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो खेती बाड़ी फसलें नहीं हो रही थी, तो एक बच्चा होता है वो भी शामिल होता है उस दुआ में कि दुआ करने जा रहे हैं कि बारिश हो। वो बच्चा जो है अम्ब्रेला हाथ में ले लेता है क्योंकि दुआ करने जा रहे हैं यकीन के साथ ना कि मतलब बारिश होगी और हम जा रहे हैं दुआ करने। तो लोगों ने कहा इतनी धूप है, इतनी कड़क धूप है, हम लोग तो दुआ करने जा रहे हैं, बारिश होती है नहीं होती, तुमने अम्ब्रेला क्यों ले लिया? तो कह रहे हम दुआ करने जा रहे हैं तो होगी। तो उस बच्चे की तरह का अगर आपको यकीन होगा कि मैं दुआ, जब अच्छा इसका मतलब है कि अम्ब्रेला किसी के हाथ में नहीं थी, तो इसका मतलब है उन्हें यकीन ही नहीं था बारिश होगी, तो वाकई नहीं होगी बारिश। ये था कि होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दुआ कबूल भी हो, नहीं, अगर 50% भी होता तो 50% लोगों के हाथ में अम्ब्रेला होती ना। किसी को उन्होंने उस हद तक सोचा भी नहीं होगा जाकर। बिल्कुल। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, समझाने का, कि अगर आपका किसी भी बात पे स्ट्रॉन्ग बिलीव हो, और अच्छा किसी चीज़ को हासिल करने के हवाले से भी ऐसा ही है, अगर आपका कोई लाइफ में मकसद है, अगर आपकी कोई अचीवमेंट हो, आपने वो गोल हमेशा याद रखना है, रोज़ाना उसको रिवाइज करना है, रोज़ाना उसका जिक्र करना है, रोज़ाना अपने माइंड में रखना है, आप यकीन करें आपको वो चीज़ मिल जाती है 100%। तो दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत व्लॉग समझ लें इसे, हवाई। अच्छा, यहाँ हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई सर्विस है, आपने कोई सुनी ऐसे? हाँ, मैंने सुनी कि हेलीकॉप्टर से इधर से उधर लेके जा। अच्छा, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी। अच्छा, किस सिटी टू सिटी? 25,000 आई थिंक। अच्छा, मैंने ऐसे कोई व्लॉग्स वगैरह देखे नहीं है। नहीं, मैंने देखे हैं और इसी तरीके से, लेकिन 15 मिनट्स की थी ये, वो भी आई थिंक 15 to 20 मिनट्स की है। मैं ये कहूँगी कि सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन टाइम बहुत कम था, 15 मिनट्स यूँ गुजर गए। अच्छा, हमारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी इस टाइप का एक व्लॉग बनाया था, तो उसमें ये था कि हमारी जो है 25,000 में पूरा डे के लिए। अच्छा, और बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देंगे वो। आपकी ट्रेनिंग करेंगे, मतलब आप
फ्लाइट के साथ साथ आपको बताएंगे भी फंक्शंस कैसे, मतलब आपको ऑपरेट करना है उसको, फिर आप खुद से उसको फ्लाई करो, उसको फ्लाइट को अच्छा। लेकर जाओ एक जगह से दूसरी जगह। और एक ही दिन के अंदर आप सीखोगे, जाओगे। और एक ही दिन के अंदर आपने किसी को गिरा भी दिया तो गिरा दिया। नहीं, बस आपके साथ पायलट होगा और आप होंगे, ठीक है, अच्छा। जो मतलब ट्रेंड होंगे वो होंगे आपके साथ, वो आपको सिखा देंगे। फिर आप अपने डेस्टिनी पे जहाँ पे आप लैंड करोगे तो फिर उसके बाद दोबारा से फ्लाई करके दोबारा अपनी जहाँ से आपने स्टार्ट करा है वहाँ आओगे। ये थोड़ा सा वो है, एडवेंचर है, मतलब हाँ, जिस तरह यही हो गया। और दूसरी बात ये कि आप एक क्लास भी हो गई आपकी, यानी कि आपको प्रॉपर्ली आ गया ऑपरेट करना, एक टूर भी हो और गया। हाँ, फिर वो आपको एक अच्छा सा मतलब सर्टिफिकेट भी इशू करके देंगे। अच्छा सा, बिल्कुल अच्छा सा। साफ आप पायलट बन गए, एक दिन में पायलट बन सकते हो। खैर ज़बरदस्त एक एडवेंचर वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।